A very good morning and assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well at your home. And I'm your teacher Miss Amina Ismail. I welcome you all in the science class of today. And today we are going to start the new chapter, that is characteristics and needs of living things. So let's start. Take out your book and open page number 12 of your book. As you can see on the page number 12, the name of the chapter is characteristics. Characteristics का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे लाइफ प्रोसेसेस हैं और कौन कौन सी खसूसियात हैं एक लिविंग थिंग की, और नीड्स ऑफ लिविंग थिंग का मतलब है कि उनकी क्या क्या ज़रूरत है. लाइक वी ऑल परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस ऑन आवर डेली लाइफ, और हमारे बहुत सारी रिक्वायरमेंट है. मतलब हमें खाने की ज़रूरत है, सांस लेने की ज़रूरत है, हमें बड़े होने की ज़रूरत है, हमें शेल्टर की रिक्वायरमेंट है. सो दिस इज़ द नीड ऑफ अस. Now let's start with the reading first. There are many things around us. Some are living and some are non-living. As you know, the world is full of material. हम इधर उधर कहीं भी देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं. And we can see that there are some living things and some are non-living things. Living things are those who can breathe, who can grow, and who can respire, who can reproduce. They are called living things like us and like animals. But some are living, non-living as well. Non-living like table, chair, buildings, they all are non-living things. People, animals and plants are microorganisms and microorganisms are living things. इंसान, जानवर और पौधे और माइक्रोऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो हम नहीं देख सकते, that we cannot see by the eyes, are called microorganisms like germs, bacteria, etc. So they are also living things. Living things are organisms that display the key characteristics of life. Living things उन ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है ज़िंदगी की. द कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड द एबिलिटी टू ग्रो. मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि उनके अंदर सलाहियत हो कि वो बड़े हो सकें, ईट खा सकें, ब्रीथ सांस ले सकें, मूव चल सकें, एंड रिप्रोड्यूस और एक से दूसरा बर्थ दे सकें. सो लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड सनलाइट टू सर्वाइव. तो हमारी नीड क्या है कि हमारी वाटर, फूड और सनलाइट हमें चाहिए ज़िंदा रहने के लिए. हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ आ जाती है? ग्रो, ईट, ब्रीथ, move and reproduce. So these are the characteristics. And what are the needs of living things? Food, water and sunlight to survive. We need all these three things majorly to survive the life. Now what are the characteristics of living things? As you can see on the heading below, the living things need food. What does it mean? कि इंसान को खाने की ज़रूरत है, जानदार को, किसी भी जानदार को खाने की नीड है. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. हमें खाने की ज़रूरत है बढ़ने के लिए. फूड गिव्स देम एनर्जी टू वर्क. हमें क्या मिलती है? खाने से एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हम काम कर सकते हैं. लाइक वी कैन वॉक, वी कैन टॉक, वी कैन राइड एंड वी कैन परफॉर्म ऑल द टास्क दैट वी डू इन अ डेली लाइफ. नाउ ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स, प्लांट्स, eat plants and other animals. Human beings और दूसरे जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं और अदर एनिमल्स भी खाते हैं. As we know that we are characterized into three categories, like we are omnivores, carnivores and herbivores. We are in the category of omnivores because we eat plants and animals both. And some animals eat carnivores, so they are called the animals that eat animals. यानी जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाते हैं वो कार्निवर्स कहलाते हैं, और जो एनिमल ग्रास को खाते हैं वो हर्बीवर्स कहलाते हैं. So plants make their own food. Plants की क्या फूड है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं with the help of air, water, sunlight in a process called photosynthesis. यानी प्लांट्स का खाना क्या है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस एक उनका प्रोसेस है जिसमें वो क्या यूज़ करते हैं? दे नीड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड. एंड व्हाट आर द फूड ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस? दैट कि हम कोई कुछ एनिमल्स जो है वो प्लांट भी खाते हैं, कुछ जो है वो एनिमल्स भी खाते हैं, और हम जो है वो दोनों चीज़ें खाते हैं. वी ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ. सो वी नीड फूड टू सर्वाइव. देन वी हैव द अदर थिंग, लिविंग थिंग्स ब्रीथ. इसका मतलब लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेते हैं. ऑल द लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ. एज यू नो, ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव. हर लिविंग थिंग को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने के लिए. ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ इन एयर थ्रू देयर नोज. हम जितने ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं वो अपनी नाक के थ्रू, यानी वी हैव नोज, इसकी मदद से हम सांस ले सकते हैं. दे हैव लंग्स व्हिच हेल्प देम टू ब्रीथ. उनके अंदर लंग है, लाइक वी हैव द लंग्स एंड बिकॉज ऑफ द लंग्स वी कैन ब्रीथ. एंड फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ. फिश के पास क्या है? गिल्स हैं ब्रीथ करने के लिए. प्लांट्स कैन टेक इन अ थ्रू टाइनी होल्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. अच्छा, प्लांट्स किस तरीके से एयर लेते हैं? स्टोमेटा उनके लीव्स पे मौजूद होते हैं. बिकॉज ऑफ दोज टाइनी होल्स they can breathe. So all the living things can breathe. This is a major characteristic of a living thing. Then
Living things can move. All the living things can move except the plants. Like animals move from place to place in search of food, shelter and to escape from enemies. Animals जो है इधर से उधर मूव करते हैं खाने की सर्च में, यानी खाने को जब वो ढूंढ रहे होते हैं तब वो मूव करते हैं शेल्टर के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दुश्मनों से बचने के लिए, यानी उनको कोई डेंजर ना हो जाए. दैट्स वाई दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Then plants cannot move from one place to another, but they show some movement in their parts. प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं करते, बट वो कुछ उनकी मूवमेंट, उनके कुछ पार्ट जो है मूवमेंट शो करते हैं. जैसे सनफ्लावर फेसेस टूवर्ड्स द सन ऑफ फॉर लाइट. अच्छा, सनफ्लावर जो है वो मूव करता है जहाँ पे सूरज की रोशनी होती है उसी तरफ मूव करता है. दे कैन नॉट मूव, बट उनके जो पार्ट्स हैं वो अपनी मूवमेंट को शो करते हैं. एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फिश स्विम, मंकी क्लाइम्स, बर्ड्स फ्लाई. एनिमल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. जैसे फिश जो है वो स्विम करती है, मंकी जो है क्लाइम करते हैं यानी इधर उधर चढ़ते हैं, और बर्ड जो है एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाती हैं. दिस इज द डिफरेंस ड्यू टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर, द प्लेस वेयर दे लिव. ये डिफरेंस क्यों है? ताकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से, लाइक बर्ड्स हैव द विंग्स एंड फिशेस हैव द फिन. उनके पास फिन्स होते हैं, उनके पास विंग्स होते हैं, और हमारे पास लेग्स होते हैं. इनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है और उनके जगह की वजह से भी उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है. नाउ लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज. लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो भी करते हैं और चेंज भी होते हैं. अब बेबी ग्रो इनटू एन अडल्ट. अब यंग प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री. दे इंक्रीज इन साइज. एक बेबी जो है वो एक बड़ा इंसान बन जाता है, लाइक यू आर अ किड एंड नाउ यू आर ग्रोइंग डे बाय डे. और एक यंग प्लांट जो है वो एक ट्री में बन जाता है. दे इंक्रीज इन साइज, और साइज में भी चेंज हो जाते हैं. Living things reproduce. The process of reproducing young ones is called reproduction. यानी एक से नया आना reproduction का process है. And this is the characteristics of living thing. और ये एक living thing की characteristics में शामिल है. Some animals give birth to young ones. कुछ animals जो है वो young ones को birth देते हैं. कुछ animals egg देते हैं. Like hen gives the egg. जो मुर्गी होती है वो अंडे देती है. Cat produces kitten. Cat जो है वो produce करती है. And A mango seed produce mango tree. एक मैंगो सीड से क्या बन जाता है? एक मैंगो ट्री बन जाता है. Most plants give rise to new plants with the help of seed. बहुत ज़्यादा प्लांट जो है वो सीड की मदद से जो है वो ग्रो करते हैं. A seed grow into a seedling and later into a big plant. जो पहले सीड जो है वो सीडलिंग होती है, यानी उसकी ग्रोथ होना शुरू होती है, उसके बाद वो एक बड़ा सा पौधा बन जाता है. So what are the life processes? 5 major life processes हैं. Need of food. They need food, they breathe, they can move, they can grow, and they can reproduce. These are the characteristics of a living thing. Now what are the needs of living thing? We have discussed that food, air and water and sunlight are the basic needs of living thing. Without of them they cannot survive, they cannot live. So needs of living thing needs food, water, air and sunlight for their survival. Living things को food चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए और सूरज की रोशनी चाहिए जिंदा रहने के लिए. खाने की वजह से एनर्जी मिलती है. वाटर की वजह से, एज यू नो, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट वाटर है, और इसके अलावा हमें सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत है, और सनलाइट हमारी बेसिक नीड है. सो लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. फूड मेक्स देम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बाय गिविंग देम एनर्जी. Plants can make their own food. They take the energy from sunlight, carbon dioxide from air and water from soil and convert these into food through a process called photosynthesis. हमारी नीड क्या है? हमें खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए, और जो हम खाना खाते हैं वो भी ड्यू टू सनलाइट ही, यानी जितने भी प्लांट्स ग्रो करते हैं वो सनलाइट के थ्रू ही ग्रो करते हैं. और अगर सनलाइट ना हो तो प्लांट्स की ग्रोथ ना हो, और फिर हम जो है वो खाना हमें नहीं मिलेगा. ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो प्लांट्स ही हैं. एंड वी नीड ऑल दीज थिंग्स. एंड प्लांट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो सनलाइट है जो कि उसे सूरज से मिलती है, एंड इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उसे एयर से मिलती है, एंड वाटर जो उसे सॉइल के थ्रू मिल जाता है. और ये वो इन सारी चीज़ों को कन्वर्ट करके अपना खाना प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड. एनिमल्स जो हैं वो फूड नहीं बना सकते, बट वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे और कुछ एनिमल्स पे, यानी कुछ प्लांट्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स को खाते हैं. लाइक हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड कार्निवोर्स ईट एनिमल्स. वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, बट वो दूसरे लिविंग थिंग पे डिपेंड करते हैं. देन एयर इज़ नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू स्टे अलाइव. एयर जो है वो हर लिविंग थिंग की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए. ह्यूमन breathe in air through their lungs. इंसान जो है वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं. Lungs take oxygen from their air and send it to the whole body.
लंग्स जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक देयर फूड. और प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. वाटर जो है हर जानदार की नीड है. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल. यानी हर प्लांट और एनिमल को वाटर चाहिए जिंदा रहने के लिए. ह्यूमंस नॉट only to drink water but also use it in their daily life for cooking, washing and cleaning. Humans जो हैं वो सिर्फ पानी पीते ही नहीं बल्कि उसको अपनी डेली लाइफ के जो उनका लाइफ स्टाइल है, दे परफॉर्म द डिफरेंट टास्क लाइक कुकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग, सबके लिए ना पानी की ज़रूरत है. सिर्फ वो पीते नहीं, इसके अलावा भी इन्हें बहुत सारे कामों के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है. प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड विदाउट वाटर. जो प्लांट्स हैं वो खाना ही नहीं बना सकते पानी के बगैर, तो पानी उनके लिए भी बेहद ज़रूरी है. Now the second thing is sunlight. Sunlight, the sun is the biggest source of energy. All living organisms need sunlight. Plants cannot make their food without it. Plants जो है वो खाना नहीं बना सकते, हमें एनर्जी की नीड है. Because of sunlight हमारे plants ग्रो करते हैं और हम वो plants जो है वो खाते हैं. The human made body makes vitamin D when exposed to sunlight. हमारी body में vitamin D बनता है sunlight की वजह से. So these are the requirements that our body need: food, air, water and sunlight. And what are the characteristics that we हम खाते हैं, हम सांस लेते हैं, मूव करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन. ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, they all have these characteristics and these are the needs of them, and without of these they cannot survive. So I hope you all have understand the characteristics of living thing and what are the needs of living thing. So I'm Ms. Amina Ismail signing off from today's science class. I hope you all get the lecture and kindly read page number 12 and read it again and try to understand it more clearly. If you have any sort of questions and you have any sort of confusion, you can ask to me. Allah Hafiz. Take care of yourself.